Hello everyone, all of you are welcome back in my online English class at my YouTube channel Start English. Please share and subscribe this channel for regular updates and lectures on English grammar for class 9, 10th, 11th, 12th and for competitive exam. We discussed modals, 5 modals in previous 2 lectures. Use of can, could, may, might and must. Today I am going to discuss use of will, shall, would and used to. First of all, use of will. हम जनरली फ्यूचर टेंस के अंदर will और shall का यूज़ करते हैं. हम फ्यूचर टेंस में I और we कर्ता के साथ shall का यूज़ करते हैं. अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम will का यूज़ करते हैं. टू शो प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, विलिंगनेस और रिफ्यूज़ल. वी यूज will with I and we. हम प्रॉमिस वायदा, धमकी, डिटर्मिनेशन हमारा दृढ़ निश्चय, इंटेंशन हमारा इरादा, विलिंगनेस हमारी इच्छा, रिफ्यूज़ल मनाही को दर्शाने के लिए आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू शो प्रॉमिस, I'll do everything for you. I'll do everything for you. This one is a promise. Next one, to show threat, धमकी को दर्शाने के लिए I'll punish you if you fail in the exam. This one is a threat. एक धमकी है और इस धमकी को दर्शाने के लिए हम आई के साथ will का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, टू शो डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा. फॉर एग्जाम्पल, आई want surrender before the judge. I want surrender. Want short form of will not want. I want surrender before the judge. मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा. दिस वन इज द डिटर्मिनेशन. आई वॉन्ट गिव इन, मैं हार नहीं मानूंगा. दिस वन इज ऑल्सो डिटर्मिनेशन. टू शो सच टाइप ऑफ द कंसेप्ट वी यूज will with I and we subject. To show intention, for example, I'll go to Jaipur tomorrow. I'll go to Jaipur tomorrow. This one is your intention. हम जनरल फ्यूचरिटी को शो करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि आई शैल गो टू जयपुर. दिस वन इज योर जनरल फ्यूचर प्लान. ये आपकी सामान्य भविष्य की योजना है. बट यदि आप कहते हैं कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं जयपुर कल अवश्य जाऊंगा, तो ये आपका इरादा है, आपका उस काम को करने का मन है. नेक्स्ट वन, विलिंगनेस. फॉर एग्जाम्पल, we will request your brother
to help you. You are showing your willingness to do this work. We will request your brother. हम आपके भाई से ये रिक्वेस्ट करेंगे आपकी हेल्प करने की. तो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ willingness. And to show refusal, I won't listen to you unless you talk sense. I won't listen to you unless you talk sense. This one shows refusal. To show refusal, we also use will with I and we. Want is the short form of will not. To show promise, threat, determination, intention, willingness and refusal, we use will with I and we subject. This one is special use of will. Second use of will is to show official orders. जितने भी ऑफिशियल ऑर्डर होते हैं उनको दर्शाने के लिए भी हम will का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू विल attend your class at 10 o'clock tomorrow. You will attend your class at 10 o'clock tomorrow. इस तरह के ऑफिशियल ऑर्डर्स के लिए भी हम will का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, टू शो रिक्वेस्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, will you help me? Will you help me? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम would you का यूज़ करते हैं. यूज ऑफ would you. Would you help me? This request is more polite than this one. We can use will you to show requests. Next use of will is to show polite invitation. For example, will you have a plate of rice more? Will you have a plate of rice more? This one shows polite invitation. Next use of will is to show inevitability. अवश्यंभाविता को शो करने के लिए ऐसे कार्य जिन्हें हम टाल नहीं सकते उनको शो करने के लिए भी हम will का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, accidents will happen. Accidents will happen. दुर्घटनाएं घटती रहेंगी. Next use of will is to show obstinate insistence. हमारी जिद्दी आदतों को दर्शाने के लिए भी हम will का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, my husband will drop ash on carpet. My husband will drop ash on carpet. This one is the obstinate habit of his husband to drop ash on the carpet. These are important uses of will. Main use of the will is to show promise, threat, determination, intention, willingness
a refusal with subject I and we. नेक्स्ट मॉडल इज शैल, यूज ऑफ शैल। हम जनरली फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी कर्ता के साथ शैल का यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचरिटी को शो करने के लिए। बट टू शो प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड, ऑफिशियल ऑर्डर्स, कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन वी यूज शैल with second and third person subjects। हम वायदा, धमकी, आदेश, किसी भी तरह की बाध्यता इत्यादि को शो करने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी कर्ता के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू शो प्रॉमिस, you shall have the money on Monday। This one is your promise। You shall have the money on Monday। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज़ कर रहे हैं। सेम टू शो थ्रेट, धमकी को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू दिस अगेन यू शैल बी dismissed from job। This one is threat and we are using shall with subject you। If you do this again you shall be dismissed from job। In the same way, to show command, students shall stand in a queue। This one is a command। We are using shall with third person subject students to show official orders। And to show compulsion and obligation we also use shall। No one shall enter without permission। No one shall enter without permission। Such type of obligation is also expressed by using shall with third person object। In the same way, to show official order, for example, students shall come to school at 10। Students shall come to school at 10। Such type of official order is also expressed by using shall with third person। To show promise, threat, command, official order, compulsion and obligation is the important use of shall। Next, we use shall we as question tag in imperative sentences started with let us or let's। let us और let's से शुरू होने वाले imperative sentences में हम क्वेश्चन टैग के तौर पे shall we का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। शैल बी, लेट्स से वाक्य शुरू हो रहा है, इसके लास्ट में हमें क्वेश्चन टैग लगाने के लिए भी शैल का यूज़ करते हैं। लेट अस परमिशन का सेंस शो करता है, जबकि लेट्स ऑफर का सेंस शो करता है। नेक्स्ट यूज ऑफ शैल इज टू शो ऑफर ऑफ सर्विस एंड सजेशंस। सर्विस के ऑफर एंड सजेशंस को शो करने के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हेल्प you, shall I help you? In the same way, shall I read this book? Shall I read this book shows suggestion, and shall I help you shows offer of service. In this way, we can use shall, but important use of shall is the first use to show promise, threat, command, official orders, compulsion and obligation. Next model is would. हालांकि would will की पास्ट फॉर्म है, लेकिन हम would का यूज will की पास्ट फॉर्म की तरह ही नहीं करते, जबकि इसके कुछ अलग भी यूजेस हैं। फर्स्ट यूज ऑफ द वुड इज़ टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज़। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज़। हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू का यूज़ कर रहे हैं। हम सिंपल रिक्वेस्ट के लिए विल यू का भी यूज़ करते हैं। कुड यू भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुड यू का यूज़ हम जनरली इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ द वुड इज टू शो विशेस। हमारी विश को दर्शाने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गो। आई वुड लाइक टू गो, इट शोज योर विश। इसी तरह से विशेस को शो करने के लिए हम कई बार वुड दैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, would that he were here। इस तरह के इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम would that का यूज़ करते हैं और हर किसी कर्ता के साथ were का यूज़ करते हैं। काश वह यहाँ होता, ऐसी विशेष को शो करने के लिए भी हम would मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ would is to show preference by using would rather or sooner। would के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में rather और sooner का यूज़ करके भी हमारी प्रेफरेंस को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड rather or sooner die than tell a lie। I would rather or sooner die than tell a lie। इस तरह से would के साथ कंपैरेटिव डिग्री में rather और sooner का यूज़ होता है और इसके साथ THAN then का यूज़ होता है हमें प्रेफरेंस को शो करने के लिए। इन द सेम वे, नेक्स्ट यूज़ ऑफ द वुड इज टू शो विलिंगनेस।
हमारी इच्छा को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड डू दैट फॉर यू। आई वुड डू दैट फॉर यू। इस सेंटेंस से विलिंगनेस शो हो रही है और इसके लिए हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ द वुड इज टू सीक परमिशन बाय यूजिंग वुड यू माइंड। समटाइम्स वी यूज दिस सिंटेक्स वुड यू माइंड। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड opening the window? Would you mind opening the window? इस सेंटेंस में हम परमिशन ले रहे हैं किसी दूसरे से by using would you mind. Next use of would is to show unreal conditions of past and present. इसे हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड के अंदर भी पढ़ते हैं कि इस टाइप की कंडीशन जो पूरी नहीं हो सकती उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई वर अ बर्ड, वर का यूज़ हो रहा है इमेजिनरी कंडीशन को शो करने के लिए एंड सेकंड मेन पार्ट के अंदर हम वुड का यूज़ करते हैं। काश मैं पक्षी होता, मैं आसमान में उड़ता। इस तरह की इमेजिनरी सेंटेंसेस जिसे हम कंडीशनल टाइप सेकंड कहते हैं उसमें भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज टू शो पास्ट हैबिट्स एंड हैबिचुअल रिपीटेड एक्टिविटीज। हमारी पुरानी आदत या सामान्य पुराने रूटीन को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडमदर would tell stories in my childhood. In my childhood, my grandmother would tell stories. ग्रैंडमदर की स्टोरीज बताने की पुरानी हैबिट को शो करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड से बताई जाने वाली पास्ट हैबिट डिसकंटिन्यूड हैबिट नहीं होनी चाहिए जो आपने बाद में जानबूझ के छोड़ दी। एक नॉर्मल हमारी पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, बल्कि डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट बताने के लिए हम नेक्स्ट यूज टू मॉडल का यूज़ करते हैं। इन द लास्ट, विल एंड शैल, इन दोनों को हम वुड में चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही said to me, I shall write a book tomorrow. I shall write a book tomorrow. जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, he told me that he, यहाँ पे will और shall जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिलती है उसकी जगह हम केवल वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड राइट अ बुक नेक्स्ट डे। इस तरह से
हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी विल और शैल दोनों को वुड में चेंज करते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वुड। नेक्स्ट मॉडल इज यूज टू। यूज टू का एक सिंगल इम्पोर्टेंट यूज है इंग्लिश में। इसका यूज होता है टू शो discontinued habits of past। पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट्स को शो करने के लिए, जैसा कि हम पिछले मॉडल में वुड से भी पास्ट हैबिट का यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन वुड पास्ट की जनरल हैबिट्स को शो करता है, जबकि यूज टू ऐसी हैबिट को शो करता है जो वर्तमान में आपको नहीं है और उस हैबिट को आपने जानबूझ के छोड़ा है। ऐसी कंट्रास्ट वाली डिसकंटिन्यूड हैबिट्स के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू स्मोक when I was young। I used to smoke when I was young। तो स्मोक करने की हैबिट आपकी तब थी जब आप यंग थे, लेकिन वर्तमान में आपने इस हैबिट को छोड़ दिया। ये हैबिट ग्रेजुअली अपने आप नहीं बंद हुई, जबकि इसको आपने डिसकंटिन्यू किया है। ऐसी हैबिट्स के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, और सामान्य हमारी पुरानी आदत के लिए हम वुड का ही यूज़ करते हैं। यूज टू का नेगेटिव फॉर्म यूज्ड नॉट टू, शॉर्ट फॉर्म में यूजन टू और डिडंट यूज टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजंट टू स्मोक व्हेन आई वॉज यंग। यूजन की जगह हम डिडंट यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। आई डिडंट यूज टू स्मोक व्हेन आई वॉज यंग। यूज टू का एक सिंगल यूज है टू शो डिसकंटिन्यूड हैबिट्स। टू शो जनरल पास्ट हैबिट्स वी यूज वुड, एंड टू शो discontinued past habits we use to। We shall discuss use of should or to, need and dare in our next lecture, so don't miss any lecture। Be continue with Start English by subscribing this channel। That's all, thank you।